Let's start with the next part of the series on logarithms, logarithmic equations. So logarithmic equations are to be solved using the same properties of logarithm which we have studied in the first part of this video series. It's not you can say a huge whole lot of difference in solving logarithmic equations and solving normal logarithmic problems. Let's start and let me show you how can we solve these logarithmic equations easily. So oops, log of x to the base 10 minus 1 is equal to minus of log of x minus 9 to the base 10. First thing I'm going to write is log of x to the base 10 plus log of x minus 9 to the base 10 is equal to 1. Okay, now you know the identity, the property of log, the law of logarithm, which says that log of a plus log of b to the base, any common base, is equal to log of ab. So in reverse we can use this identity. That is basically the identity is log of ab is equal to log of a plus log of b. So we can write it as log of x bracket x minus 9, x multiplied by x minus 9 to the base 10 is equal to log of 10 to the base 10. You see what I've done over here? What I've done is I've written 1 as log of 10 to the base 10. So this will become x bracket x minus 9 is equal to 10. Right? So what I've done is I've removed log from both the side. I've removed log from both the side. I can do that. Okay. See, there is one more way of doing it. Rather than doing that, rather than doing this step, what you can do is, if this is 1, right, then how can we write it? 10 raised to 1 is equal to x bracket x minus 9. So what we did is we converted logarithmic form into exponential form. Doesn't make any difference. The earlier one was also correct. This is also correct. So x square minus 9x minus 10 is equal to 0. So the factorization of this will be x minus 10 bracket x plus 1 is equal to 0, and therefore x is equal to 10 or x is equal to minus 1. Now we know that in the logarithmic uh, in any equation including involving logarithm, the x, that is your domain, it is always the domain is always a positive number. The domain is always a positive number, and that's why minus 1 will not be defined for this particular equation. Therefore, since x is equal to minus 1 does not define a logarithmic equation or expression, therefore x is equal to 10 will be our answer. Okay, see, the base cannot be negative. The base is always greater than 0. The base is never equal to 1, that we know. But the number whose log is to be taken, the number whose log is to be taken is always a positive number, right? Always remember that. Okay, so that the answer which we will get in logarithmic function, you remember what is the domain? In logarithmic function, the domain is, what is the domain? The range is real number. What is the domain? The domain is all positive numbers. So if you want to check that, I've suggested that earlier. Let me show it to you. Yeah. So in logarithmic function,
the domain is always a positive number, the range is any real number. Okay, so to reconfirm that and establish that properly, I've showed that to you. Okay, so x is equal to 10. Let's go to the next logarithmic equation. Log of 2 under root log of 2 under root 17 minus 2x. You have to solve this whole thing. Log of 2 under root 17 minus 2x is equal to 1 minus log of x minus 1 to the base half. And here the base is 2. Remember, here the base is 2. I have not written that. I'm just writing it right now. Okay. So, see, here this base is very peculiar. It is between 1 and 2. Sorry, it is between 0 and 1. What if I want to take the reciprocal of this base? Because this side also the base is 2. What if I want to make the reciprocal of this base and make it equal to 2? So for doing that, what I can do is I can write log of 2 under root 17 minus 2x to the base 2 is equal to 1 plus log of x minus 1 to the base 2. So what did I do? What did I do over here? I took the reciprocal of this base of the logarithm and I changed the sign in front of it. Now you will say that there is no law such that, like okay, let me write a law and then let me prove it for you. Okay, let me first prove it for you and then write a law. That sounds fair. Okay, so let's say that we have y is equal to log of x minus 1 to the base half. What does this mean? This means that half raised to y, half raised to y is equal to x minus 1. Right? Half raised to y is equal to x minus 1. Now what will happen if I make this half into 2? The power here will become minus y. 2 raised to minus y is equal to x minus 1. So can I write this in logarithmic form? Now in logarithmic form, this will become log of x minus 1 to the base 2 is equal to minus y. And what is y? We know that y is the whole thing over here. So log of x minus 1 to the base 2 is minus of log of x minus 1 to the base half. You see that अगर बेस को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो लॉगरिथम के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाती है. सो ये प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. ठीक है. सो इसको हम लोग ऐसे जनरली कैसे लिख सकते हैं? log of x to the base a is equal to negative of log of x to the base 1 by a. ठीक है. इसको प्लीज तुम नोट कर लेना अपनी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ये कभी कभी काम आ सकता है. कब काम आएगा अपने को पता नहीं है. यस, सो कब काम आएगा ये अपने को पता नहीं है, तो एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए. दूसरी जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी उसके साथ इसको भी तुम लिख लेना प्लीज. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. So we have this whole expression. Let's simplify this. So we have log of 2 अंडर रूट. ये 2 रूट नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं है. ठीक है, 2 बाहर है, फिर मल्टीप्लाइड विद 17 माइनस 2x है टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 है टू द बेस 2 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है. तो अगर माइनस साइन आती है तो तुम्हें पता है क्या करना है. लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए बाई बी. सो लॉग ऑफ ए log of a minus log of b is log of 2 under root 17 minus 2x upon x minus 1 to the base 2
इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, इसको आगे कुछ करने से पहले लॉग हटा दो, मतलब इसको लॉगरिथम की लैंग्वेज से एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। सो बेस तो वही रहेगा। सो 2 raised to 1 हो जाएगा ये। 2 raised to 1 इज इक्वल टू 2√17 - 2x अपॉन x-1। x-1 वो साइड जाएगा। 2 raised to x, 2 मल्टीप्लाइड बाई x-1 इज इक्वल टू 2√17 - 2x। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दो, तो 4 ब्रैकेट x-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 17 - 2x। सॉरी, 4 ब्रैकेट, दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ द साइड हो जाए। एक्चुअली 2 तो पहले ही कट सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको 2 को यहाँ पे काट दिया मैंने, 4 को इसके साथ काट दिया, कोई बात नहीं, ये 4 है। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व इट। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व इट नाउ and get the value of x। ठीक है, pause the video, solve it now and get the value of x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। okay, so solving this we get x is equal to x square is equal to 16, which gives x is equal to plus minus 4। x is equal to plus minus 4। अब देखो, x की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां भी हम अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं x की जगह पे, तो यहाँ पे आता है -5। कभी भी लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर होता नहीं है, x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 सिंस वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो that was it। I hope you understood this whole question and this new thing which we have applied over here। Anyways, let's go to the next question। 2 raised to x plus 2 multiplied by 27 raised to x upon x minus 1 is equal to 9। okay, so we can write this as 2 raised to x plus 2 multiplied by 2 raised to x upon x minus 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, is equal to 9। okay, taking log on both sides, we will get log of 2 raised to x plus 2, log of 2 raised to x plus 2 into 2 raised to x upon x minus 1 is equal to log of 9, is equal to log of 9। okay, now log of a into b, we can apply that, that is log of a, that is 2 raised to x plus 2 plus log of b, that is 2 raised to x upon x minus 1 is equal to log of 9 को we can write it as log of 3 square। नाउ पावर लॉ का यूज यहाँ पे हो सकता है, दोनों साइड पे पावर लॉ यूज हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2 ब्रैकेट log 2 प्लस x अपॉन x माइनस 1 इंटू log ऑफ 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2 log 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? वी कैन टेक आउट दिस x प्लस, वी कैन टेक आउट दिस मेरे पास यहाँ पे 27 था, मैंने 2 क्यों लिखा यार? 27 है ये, 27 है, यहाँ भी 27 है, तो यहाँ पे 2 रेज टू नहीं 27 हो जाएगा ये।
और 20, ये तो फिर log ऑफ 27 हो जाएगा। यस, log ऑफ 27 है वो। अच्छा, log ऑफ 27 है तो कोई बात नहीं। सो x प्लस 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस x अपॉन x माइनस 1 इंटू log of 3 cube which is 27, which is equal to 2 log 3, which implies see, ये जो 3 क्यूब है ये आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो x प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस ये जो 3 है ना, ये पावर में ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x अपॉन x माइनस 1 इंटू लॉग 3 माइनस 2 log 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 log 3 को भी ये साइड लेके आया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द स्टेप्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, लंबे क्वेश्चन है, टाइम लगता है सॉल्व करके दिखाना है, मतलब इट इज लाइक ओरली बोल देना इजी है, बट सॉल्व करके दिखाना इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट या वी आर टेकिंग आवर टाइम, कोई जल्दी नहीं है हमको। ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस यहाँ से log 3 को कॉमन निकाल लो, प्लस log 3 को अगर कॉमन निकालेंगे, log 3 को बाद में लिखते हैं हम लोग, बट अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 log 3, है ना। log 3 तो मल्टीप्लीकेशन में ही है वैसे दोनों के साथ, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 यहाँ पे आएगा, 3x माइनस 2x माइनस 2, 3x माइनस 2x है x माइनस 2, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सो x प्लस 2 इंटू लॉग 2 प्लस 3x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1, हाँ प्लस 2 हो जाएगा। यस, x प्लस 2 बाहर आ सकता है। 3x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 the whole into log 3 is equal to 0. Okay, so this will be x plus 2 into log 2 plus 3x minus 2x is x plus 2, x plus 2 upon x minus 1 into log 3 is equal to 0. ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, देखो x प्लस 2 अगर कॉमन निकाल लें दोनों से, दोनों ब्रैकेट से जो निकल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा log 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस log 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे लगता है कि वी कैन इक्वेट बोथ द साइड्स विद 0, क्योंकि हमारे पास पूरा फैक्टराइज हो गया है, तो दोनों साइड को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो सकता है आंसर, हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे, क्योंकि हमने log के बाद तो x है नहीं, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एक आंसर हो सकता है। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे आंसर क्या आता है। तो हमें मिल सकता है इसमें log ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, x माइनस 1 वो साइड चला जाएगा, सो विल गेट x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 3 अपॉन log 2। x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 3 अपॉन log 2। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा मैं स्पेस बना रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। तो x माइनस 1
सॉरी x इज इक्वल टू -1 वो साइड जाके 1 प्लस हो जाएगा 1 माइनस log 3 अपॉन log 2। तो x की एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू x की क्या है -2। 1 माइनस log 3 अपॉन log 2 एंड x इज इक्वल टू -2। समझ में आया अभी? ठीक है, तो नोट कर सकते हो आप लोग, कॉपी मत करो, नोट करो, समझो इसको और फिर नोट करो, चाहिए तो खुद सॉल्व करो और मेरे स्टेप्स देखते जाओ एक के बाद एक मैंने क्या किया है। थोड़ा हौच पौच हो गया ये, बट मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा, मैंने हर एक स्टेप को ऐसा ब्रेक डाउन करके किया इसके लिए। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन फॉर यू गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा पकाना नहीं है मुझे। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है, बाकी चैलेंजिंग क्वेश्चन फिर आप सिर अपना फोड़ सकते हो। अच्छा, इनका जो मैं सोल्यूशंस है दैट आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन है ही नहीं, इसका है मेरे पास, बट एक बार ये पूरा टॉपिक हो जाता है इसके बाद मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा, इसमें भी लॉग के बाद कहीं पे एक्स है नहीं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, देखते हैं। ओके, 2x raised to log of 2 to the base b and 3x raised to log of 3 to the base b। अब ये log तो जाके बैठा है पावर में, इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग log on both sides। तो क्या हो जाएगा ये? log of 2x raised to log of 2 to the base b is equal to log of 3x raised to log of 3 to the base b। ठीक है, अब पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, यू नो दैट। तो पावर क्या है? log of 2 to the base b of log of 2x is equal to log of 3 to the base b of log of 3x। इंटरेस्टिंग, log of a नंबर। अब क्या करेंगे? अभी हम लोग अंदर थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देते हैं। ये 2x है ना, 2x का मतलब क्या है? 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। So let's write it as log of 2 to the base b into log of 2 plus log of x is equal to log of 3 to the base b is into log of 3 plus log of x। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो log of 2 to the base b into log, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। प्लस log of 2 to the base b into log of x। ठीक है, इज इक्वल टू log of 3 to the base b into log 3 plus log of 3 to the base b into log x। राइट, है जगह? जगह नहीं है, बनानी पड़ेगी जगह। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। ओके, सायरन की आवाज़ आती है तुमको वीडियो में? तो हर आधे घंटे में एक सायरन सुनाई देती है, मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या चल रहा है। ओके, see now I have a new technique of writing this log of 2 to the base b। can I write it? न्यू नहीं है वैसे, तो मैं लॉ फॉलो कर रहा हूँ। log of 2 अपॉन log of b। तुम बोलोगे बेस क्या है, तो बेस यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब बेस 10 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनटू log of 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा? log of 2 अपॉन log of b
इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 3 टू द बेस b है तो उसको मैं log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ b लिखूंगा इंटू log 3, log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ b इंटू log x। ओके, log ऑफ x वाली टर्म, ये log ऑफ x वाली टर्म है, यहाँ पे log ऑफ x वाली टर्म है, इसको एक साथ लाना बहुत जरूरी है। लेट्स ब्रिंग देम टुगेदर एंड लेट्स ब्रिंग द रिमेनिंग टू टर्म्स टुगेदर। ठीक है, फिर ही कुछ हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक साइड तो करना पड़ेगा ना अपने को। तो log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ b इंटू log ऑफ x माइनस log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ b इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ b इंटू log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ b इंटू log ऑफ 2। सही है, चलो, सो यहाँ पे सब कुछ एक साथ आ जाएगा एंड वी विल गेट log ऑफ x कॉमन निकल जाएगा इंटू log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ b। ठीक है, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ b, log ऑफ x बाहर आ गया, इज इक्वल टू, यहां पे we can simply write it as log of 3 into log of 3। अच्छा, ठीक है, we can write it as log of 3 the whole square minus log of 2 the whole square upon log of b। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, वी हैव मेथड फॉर सॉल्विंग एवरीथिंग। अच्छा, अभी इसको, ये पूरे टर्म को वो साइड लेके जाते हैं, सो व्हाट विल गेट log ऑफ x इज इक्वल टू, देखो log ऑफ 3 द होल स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 द होल अपॉन log b है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, अच्छा ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b अपॉन log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। तो ये जो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 जो वहां से ये साइड आया, ये कटेगा इसके साथ, और ये log ऑफ b कट जाएगा। what we are getting is log of x is equal to log of 3 plus log of 2। okay, log of x is equal to log of 3 plus log of 2। सही है ना सब कुछ गलती तो नहीं की? लेट्स सी। ओ हो, गलती है। यहाँ पे log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 था, यहाँ पे log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 था, मतलब आगे एक माइनस की साइन आएगी। यस, कट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है, गलती मिल गई, यहाँ पे एक माइनस की साइन आएगी। सो log ऑफ x इज नेगेटिव ऑफ log ऑफ 3 माइनस
सॉरी log of 3 प्लस log of 2, ठीक है। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log of x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log of a प्लस log of b क्या होता है, log of ab, या log of ab, so that is nothing but log of 6, नेगेटिव ऑफ log of 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड से, अच्छा नेगेटिव है तो इसको -1 मान लेते हैं। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं log of x इज इक्वल टू log of 6 रेज टू -1, so log of x is equal to log of 1 by 6, right, and therefore x is equal to 1 by 6. Oof, amazing question, right? समझ में आया लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो तुम आगे करते जाओ तुम्हें मिलेगा आंसर। चलो इसको कहीं और लेके जाते हैं। ओके, सॉल्व फॉर x, x रेज टू रूट x रेज टू रूट x इज इक्वल टू रूट x रेज टू x रेज टू रूट x इज इक्वल टू रूट x रेज टू x। अजीब लगता है क्वेश्चन देखने में, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो कैसे होगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लॉग्स है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लॉग्स आर हियर द हीरोज। ओके, चल, so taking log on both the side, okay, taking log on both the sides, so we have got log of x raised to root x is equal to log of root of x raised to x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो रूट एक्स है पावर है, वो पावर लॉ के हिसाब से आगे आ जाएगा। सो रूट ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, log of x रेज टू 1/2 द होल रेज टू x हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो 1/2 इंटू एक्स है ये हो जाएगा x/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/2 इंटू log of x। वो log x कैंसिल कर दो सीधा सीधा, सो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2, सो x रूट एक्स अपॉन x is equal to 2, so x is equal to 4, x is equal to 4। इसको और कोई सिंपल तरीका नहीं है क्या, दो आंसर आ सकते हैं इसके, ठीक है। मैंने तो लॉग दोनों साइड से हटा दिया है, कॉमन ले सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ यार, ये और एक तरीका हो सकता है इसका, मैंने ना ये स्टेप में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब देखो इसका और एक तरीका, so we can also do like this, root of x into log of x minus x/2 into log of x is equal to 0, और ये सही तरीका है एक्चुअली। यहाँ पे हमें एक ही आंसर मिला, मुझे लग रहा है दो आंसर होने चाहिए इसके, ठीक है। सो log x जब बाहर आएगा, कॉमन आएगा, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू गोइंग टू गेट रूट एक्स माइनस x/2 is equal to 0, so therefore log x is equal to 0 और रूट एक्स माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। ये मैं सॉल्व करता हूँ, देखो log ऑफ एनी नंबर 0, मतलब वो नंबर क्या होगा 1, log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। x की वैल्यू 1, अब 1 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो 2√x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे you can do this. You can do 2√x is equal to x, then you can do squaring both the sides, so you get uh, you get 4x is equal to x square, so you get x square minus 4x is equal to 0, or you get x bracket x minus 4 is equal to 0, so you get x is equal to 0 और x इज इक्वल टू 4। लेकिन x कभी जीरो नहीं हो सकता, लॉग में अंदर x है तो x कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 4 जो हमें पहले भी वैल्यू आई थी वो भी आई है, और x इज इक्वल टू 1 जो बाद में हमें आई, वो दोनों वैल्यू यहाँ से ये मेथड से हमें मिलती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस लास्ट इक्वेशन। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द लॉगरिथमिक इक्वेशंस। देखो 35 मिनट्स का हुआ है ये वीडियो, और मैं ये भेज दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इसके बाद और एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, लास्ट नहीं कर रहा हूँ, और एक लास्ट बनाऊंगा वीडियो जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू यूज लॉगरिथमिक टेबल। आज ही खत्म करते हैं इसको, आज ही बना रहा हूँ, कंटाल गया हूँ यार लॉगरिथम देख देख के। ठीक है, सो लॉगरिथम टेबल्स कैसे यूज करता है, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल कैसे यूज करना है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा वो वाली वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।